Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, soil. Soil is one of the most precious gifts of nature. It provides the support and nourishment that plants need in order to grow. All living things depend on plants for their food. So we can say the existence of all creatures is possible on the earth because of soil. सॉइल देखिए नेचर का एक बहुत ही कीमती तोहफा हम कह सकते हैं. ये प्लांट्स की ग्रोथ एंड नरिशमेंट को सपोर्ट करता है ताकि वो ग्रो कर सके. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. सो जो एग्जिस्टेंस है वो क्रीचर का वो पॉसिबल क्यों है अर्थ में? बिकॉज ऑफ सॉइल. क्योंकि प्लांट्स आपके सॉइल में ही तो ग्रो करेंगे, तभी हमें खाना मिलेगा, राइट? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Soil is formed by the breaking down of rocks into tiny particles. This process took over thousands of years. First, continuous exposure to the sun, wind, rain, snow and frost developed cracks in large rocks. Rainwater seeped into these cracks. Remains of dead plants and animals also got deposited there. As moisture and nourishment were available, some plants grew in these cracks. As the plants grew bigger, their roots forced the cracks wide open. Finally, the rocks broke into smaller pieces. This process is called the weathering of rocks. देखिए सॉइल आपकी कैसे बनी है. जो रॉक्स हैं आपके वो जब ब्रेक हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ओके, और इसको 1 साल 2 साल 100 साल नहीं लगे, इसको टाइम लगा 1000 ऑफ ईयर्स. ओके, तो पहले क्या हुआ कि जैसे कि कंटिन्यूस एक्सपोजर सन एंड विंड की, रेन फिर स्नो की वजह से क्रैक्स आपके डेवलप हो गए. फिर रेन वाटर इन क्रैक्स में सीप कर गया, ओके, और जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो भी यहाँ पे डिपॉजिट हो गए. तो अब कुछ प्लांट्स को वहाँ से नरिशमेंट भी मिला, मॉइस्चर भी मिला, तो वो उसमें ग्रो होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्रैक्स और ज़्यादा वाइड होते गए. फिर प्लांट्स बड़े होते गए, इनकी रूट्स ने क्या किया, क्रैक्स को फोर्स किया कि वो और ज़्यादा वाइड हो जाए. फिर फाइनली आपकी रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पीसेस में आपकी ब्रेक हुई. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेथरिंग ऑफ रॉक्स. The process of breaking of rocks continued to form finer particles. Some parts of these rocks were blown away by the wind and some were carried away by rivers. Thus they were spread over wide areas. Plants grow roots among these particles and bind them together. When plants or animals die, their residues mix with the soil and make it fertile. ये जो process है जिसमें आपका rocks आपकी break हुई fine particles में, ओके, तो ये आपका कंटिन्यू चलता रहा, ओके. तो कुछ जो पार्ट्स थे रॉक के दे वो ब्लू अवे बाय द विंड और कुछ वाटर के साथ चले गए. फिर ये वाइड एरियाज में स्प्रेड हो गए. फिर प्लांट्स ग्रो हुए इन पार्टिकल्स में एंड देन बाइंड देम टुगेदर. फिर जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई हो गए तो उनके रेजिड्यू सॉइल के साथ मिक्स हो गए, जिससे कि वो फर्टाइल हो गई. ओके, लेयर्स ऑफ सॉइल. Soil is made up of many layers. These layers are often called horizons. Depending on the type of soil, there may be several layers, but there are 3 main layers which are present in all soil: the topsoil, the subsoil, and the bedrock. Soil आपकी बहुत सारी layers से बनी है, तो इन layers को often कहा जाता है horizons. तो डिपेंड करता है soil का टाइप क्या है, उसमें बहुत सारे layers हो सकते हैं, बट 3 main layers तो आपकी होती ही हैं soil में, ओके, जो है topsoil, subsoil, and bedrock. Humus. It is the surface layer of plant remains such as leaves and twigs. It is thicker in areas such as forest. ये आपका surface layer होता है plant remains का, जैसे कि leaves हो गया, twigs हो गया, और ये thicker होता है areas में जैसे कि आपके forest में. Okay. Next, topsoil. It is also called the A horizon. It is thick and dark in color. This layer is made up of manure, leaves and decaying plants and dead animals. Some air is also present in the topsoil. The roots of many plants are found in this layer. Roots usually obtain their food from this layer. Topsoil को A horizon भी कहा जाता है. ये thick होती है, dark होती है कलर में, और ये जो layer है आपकी manure, leaves और decaying plants and dead animals से बनी होती है. कुछ air जो होती है वो भी आपके topsoil में present होती है. तो roots जो होते हैं बहुत सारे plants के वो इस layer में पाए जाते हैं, और roots जो है वो usually अपना खाना इस layer से ही लेते हैं. ओके. Subsoil. This is the layer below the topsoil. As you can see, topsoil के नीचे वाली layer है subsoil. Okay. It is light in color. It is mainly made up of sand with a few pieces of rocks. There are only a few plants whose roots reach subsoil. This layer may have some mineral nutrients for plants, but it contains no humus. अब आपके जो टॉप सॉइल है उसके नीचे सब सॉइल है, इसका कलर थोड़ा सा लाइटर होता है, ये आपकी मेनली सैंड या कुछ पीसेस होते हैं रॉक्स के, उससे बने होते हैं.
तो कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स यहाँ तक पहुँच पाती है और यहाँ पे आपके थोड़े बहुत मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट यहाँ पे ह्यूमस नहीं होते. ओके, नेक्स्ट बेडरॉक. इट इज अ लेयर बिलो सबसॉइल. Okay, and it consists of two parts. The upper part consists of soft and porous rock. It is also called the parent material because the upper layer develops from this layer. The bottom part is made up of a large solid mass of rock. अब ये लेयर जो आपकी सबसॉइल के नीचे है, ओके, सबसॉइल के नीचे आपकी आती है बेडरॉक. अब देखिए इसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं. जो अपर पार्ट होता है वो सॉफ्ट एंड पोरस रॉक होता है. इसको पेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है. ओके, क्योंकि जो अपर लेयर है वो इस लेयर से डेवलप हुई है एंड जो बॉटम पार्ट है वो आपके लार्ज सॉलिड मास से बना है, रॉक्स की. ओके, नाउ लाइफ इन सॉइल. सॉइल इज द होम ऑफ मेनी लिविंग थिंग्स. बिसाइड्स प्लांट्स, मेनी स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द सॉइल. Rats, moles and rabbits make their burrows in the soil. They make the soil loose by their digging and other activities. This helps the soil to absorb more air. They also enrich the soil by their excreta. A large number of insects such as ants, bugs, beetles, leeches, worms, centipedes and scorpions live in the soil. देखिए सॉइल जो ना बहुत सारे लिविंग थिंग्स का घर है. प्लांट्स के अलावा बहुत सारे छोटे एनिमल्स हैं जो रैट उसमें सॉइल में रहते हैं, जैसे रैट्स, मोल्स या रैबिट्स हैं. ये बोरो बनाते हैं सॉइल में. ओके, ये क्या करते हैं, सॉइल को डिग करते हैं. ओके, और बाकी दूसरी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है. इससे फिर क्या होता है कि सॉइल ज़्यादा एयर को एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, और ये क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटा से सॉइल को एनरिच करते हैं. तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. देखिए ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं आपके सारे सॉइल में रहते हैं. ओके, earthworms move through the soil creating tunnels. earthworm जो हैं वो कैसे मूव करते हैं, वो soil creating tunnel की हेल्प से. ओके, plants are able to absorb more water and air through these tunnels. फिर जो plants हैं वो ज़्यादा water and air absorb करते हैं इन tunnel से. soil also contains very tiny living things which cannot be seen by the naked eye. They are called microbes. इसके अलावा soil में आपके microbes पाए जाते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आप naked eye से नहीं देख सकते. ओके, now soil erosion. We have learned that natural forces like the wind, rain, running water, etc. help in soil formation. But these factors also harm the soil. The uppermost layer of soil is most fertile as it contains humus. This soil is very soft and light. It can easily be blown away by the wind or washed away by water. When it happens, it is called soil erosion. Soil erosion is the removal of the fertile topsoil by the action of wind, water, etc. Soil erosion is a serious problem as it can change fertile land into barren land or even a desert. देखिए नेचुरल फोर्सेस के बारे में पढ़ा, जैसे विंड या रेन या रनिंग वाटर है, ये सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते, लेकिन ये फैक्टर सॉइल को हार्म भी पहुंचाते हैं. जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस होते हैं. ओके, तो बहुत ही सॉफ्ट और लाइट सॉइल होती है. तो जैसे ही बहुत तेज़ हवा आपकी चलती है या पानी से वॉश अवे हो जाती है. ओके, तो जब ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, यानी कि जो टॉप लेयर है उसका रिमूवल. अब सॉइल इरोजन जो है फर्टाइल टॉप सॉइल का आपका जो रिमूवल है वो किससे होता है, विंड से, वाटर के एक्शन से. तो ये, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि बहुत रिमूव हो गई तो क्या हो गया, बट इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम क्योंकि ये फिर ये फर्टाइल लैंड को बैरन लैंड में और यहाँ तक कि डेजर्ट में भी चेंज कर सकती है. ओके, विंड एंड वाटर के अलावा और भी आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है. लेट अस फर्स्ट स्टडी द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. Soil erosion by wind. Strong winds and windstorms blow away the top soil of a dry area with little vegetation. Soil erosion by wind is maximum in deserts. It affects farmers most as all the nutrients as well as manure are also blown away. This leaves the remaining soil less suitable for growing crops. Many times roots of plants lose their soil cover and the plants die. देखिए स्ट्रॉन्ग विंड्स या जो विंड स्टॉर्म्स हैं वो टॉप सॉइल को ब्लो कर जाते हैं ड्राई एरिया के, और जिसमें मतलब थोड़ा बहुत वेजिटेशन होता है. फिर जो सॉइल इरोजन है विंड से मैक्सिमम होता है डेजर्ट्स में. ये फार्मर्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैन्योर होते हैं, वो सब ब्लो अवे हो जाते हैं. इससे फिर क्या होता है कि अब आपकी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल रहेगी. ओके, यानी उसमें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगी. ओके, और कई बार तो कैसा क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो सॉइल कवर को ही लूज कर देते हैं. ओके, एंड दैट क्या होता है कि प्लांट्स डाई. ओके, नाउ सॉइल इरोजन बाय वाटर.
Heavy rains and strong river currents remove the soil from one place and deposit it in another. Soil erosion by water is greater in hilly areas because water flows down the slopes with greater speed and force. Heavy rains या जो strong wind river currents होते हैं वो soil को एक प्लेस से रिमूव करके दूसरी जगह पे डिपॉजिट करते हैं. ओके, सॉइल इरोजन पानी से आपका बहुत ज्यादा होता है हिली एरियाज में, क्योंकि वाटर जो है वो स्लोप्स के नीचे आपका फ्लो करता है ग्रेटर स्पीड एंड फोर्स के साथ. ओके, द रिवर कैरिंग द सॉइल स्लो डाउन द प्लेन्स एंड डिपॉजिटेड देयर. अच्छा, अब जो रिवर सॉइल को लेके जाती हैं, दे स्लो डाउन इन द प्लेन्स एंड फिर उसको वहां पर डिपॉजिट कर देती हैं. ओके, सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. Trees and grasses protect the soil from erosion. Tall trees serve as windbreaks. Roots of plants hold the soil together. Thus, plants resist the actions of both wind and water. But when people cut trees for their use, the soil becomes loose and is easily carried away. Similarly, overgrazing of grasslands by domestic animals also causes soil erosion. Trees and जो grasses होते हैं वो soil को protect करते हैं erosion से, क्योंकि जो tree है वो एक windbreak की तरह काम करते हैं. रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो सॉइल को साथ में होल्ड करके रखते हैं. ओके, तो इसीलिए जो प्लांट है विंड एंड वाटर दोनों की एक्शंस को रेजिस्ट करते हैं. बट लेकिन जब लोग पेड़ों को काट देते हैं तो फिर जो है सॉइल लूज हो जाती है, देन इट इजीली ये कैरी अवे हो जाती है. इसी तरह से जैसे ओवरग्रेजिंग हो गया बाय डोमेस्टिक एनिमल्स, उसकी वजह से भी सॉइल इरोशन होता है. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. It takes 1,000 of years for soil to form, so it is our duty to protect it. The protection of soil from erosion is called soil conservation. Soil erosion mainly takes place because of some natural forces. We cannot control these forces, but their effect can be minimized. Here are some measures that we can take to prevent soil erosion. देखिए, soil को बनने में हज़ारों साल लगते हैं, so इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें. तो जो सॉइल का हम प्रोटेक्शन करते हैं सॉइल इरोजन से उसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन मेनली आपका नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है. हम इन फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम उनके इफेक्ट को तो मिनिमाइज कर ही सकते हैं. तो देखिए, कुछ टिप्स एंड मेजर्स हैं जिससे आपको लेना चाहिए, जिससे आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे पहला है प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रास. Roots of trees and grass hold the soil tightly and do not let it fly off or flow away easily. So more number of trees should be planted to replace the ones that are cut down. The planting of a large number of trees in an area is called afforestation. Growing grass on the land which is not being used for farming is a good way to prevent erosion. अब देखिए, रूट्स होते हैं ट्रीज की, ग्रास की, वो क्या करते हैं सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं. ओके, सो जितने ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज आपके प्लांट होंगे, आप जितने कट कर रहे हैं उनकी जगह पे अपने उतने ही प्लांट्स है, उससे ज़्यादा प्लांट्स आपने लगाने हैं. तो जो प्लांट्स को हम लार्ज स्केल पे प्लांट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन. ओके, अब जैसे कोई लैंड आपकी फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं हो रही है तो उस पर क्या कर सकते हैं, हम ग्रास को ग्रो कर सकते हैं. इससे भी आपका जो इरोजन है वो प्रिवेंट होगा. ओके, नेक्स्ट, विंड ब्रेक्स. Another way of soil conservation is growing dense rows of trees or hedges around a crop field. They serve as windbreaks, protecting the soil from speedy winds. अच्छा, दूसरा तरीका क्या है सॉइल कंजर्वेशन का, कि डेंस रो जो है ट्रीज की उसको ग्रो कर दिया जाए क्रॉप फील्ड के राउंड. फिर क्या होगा कि विंड, अगर जितनी विंड चलेगी भी तो वो प्रोटेक्टर की तरह काम करेंगे, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगे स्पीडी विंड से. ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स. An embankment is a stone wall built along the bank of a river. It prevents the river from changing its course and washing away topsoil. Embankment आपका क्या होता है कि स्टोन वॉल होती है जो नदी के किनारे बिल्ट होती है. ओके, ये रिवर को प्रिवेंट करती है कि अपना कोर्स चेंज करने से, एंड टॉप सॉइल को वॉश अवे नहीं होने देती. राइट, नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग. If water comes down a slope, it flows very fast, carrying a lot of soil, causes much damage. Okay, अगर देखिए स्लोप से वाटर आपका आ रहा है तो बहुत फास्ट स्पीड में आएगा, फिर बहुत सारी अपने साथ सॉइल लेके जाएगा जिससे बहुत ज़्यादा इरोजन होगा. सो इन हिली एरियाज, हिली स्लोप्स आर कट इनटू टेरेसेस एंड यूज टू ग्रो क्रॉप्स. तो इसीलिए हिली रीजन में क्या होता है, जो हिली स्लोप्स होते हैं उनको टेरेस में कट किया जाता है, फिर वहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है. It slows down the flow of water. As water slows down, some soil from one step is left on the next step. This way the amount of lost soil is reduced.
तो ये वाटर का जो फ्लो है उसको स्लो डाउन करते हैं, फिर आपका वाटर जो है वो फ्लो करेगा स्लोली, तो कुछ सॉइल जो है एक स्टेप से वो लेफ्ट होके नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी। इस तरह से जो अमाउंट है लॉस सॉइल का वो रिड्यूस होगा। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।